Hello students, today we are going to start with our next poem of Flamingo, an elementary school classroom in a slum by Stephen Spender. Well, this is one of the most difficult poems in your English book you will study this year. It is difficult because it is full of literary devices and metaphors and difficult words, yet it is also one of the most intriguing and most thought-provoking poems. It will not be difficult, I promise you. जैसे जैसे ये वीडियो खत्म होगी आपको वीडियो समझ में आएगा. It will not be difficult by the end, but it will definitely leave you with something to think about. Let's start with the poem and try to understand it and try to understand what thoughts it is giving to us. Written by Stephen Spender, he was an English poet and essayist. He left University College, Oxford without taking a degree and went to Berlin in 1930. He took keen interest in politics and declared himself to be socialist and pacifist. स्टीफन स्पेंडर ने अपनी पढ़ाई छोड़ दी थी ऑक्सफोर्ड में बिना डिग्री लिए ही, फिर वो बर्लिन चले गए थे. ही गॉट अफेक्टेड विद द सोसाइटी. उनको सोसाइटी में जो हार्शनेस थी, जो बुराइयां चल रही थी या जो अपाथीड था या जो डिफरेंसेस थे लोगों के बीच, उससे वो उनको काफ़ी इफेक्ट हुआ. बाद में वो पॉलिटिक्स से जुड़े एक बड़े सोशलिस्ट बने, पैसिफिस्ट जो वॉर्स के अगेंस्ट रहते हैं, जो वायलेंस के अगेंस्ट बातें करते हैं. तो उनकी स्टोरीज में, उनकी पोम्स में, उनके एसेज में भी आपको ये काफी देखने को मिलेगा. एंड दिस पोम इज वन सच एग्जांपल. इन दिस पोम ही हैज कंसंट्रेटेड ऑन थीम्स ऑफ सोशल इनजस्टिस एंड क्लास इनइक्वालिटीज. जो इनइक्वालिटीज हैं और सोशल इनजस्टिस है उसके ऊपर इसके अंदर थोड़ा डिस्कशन किया गया है. एंड बिफोर स्टार्टिंग द पोएम, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दीज टू वर्ड्स. An elementary school classroom. So what is an elementary school? Elementary school क्या होता है? Elementary school is the primary school, जो basic education होता है. Primary school जो छोटे बच्चों का स्कूल होता है, मोस्टली KG क्लास 1 2 3 के स्कूल से होते हैं, क्लास 1 2 3 तक के. That is an elementary school, which is like it's in almost every school. हर स्कूल में होता है. आप चाहे किसी भी शहर में, किसी भी एरिया में, किसी भी लोकेलिटी में रहोगे, if there is a school, there will be elementary classes there. But the difference here is, which creates, is the slum. What is a slum? हम सबको मालूम है स्लम क्या होता है, झुग्गी झोपड़ियों वाला एरिया. तो ये एक एलिमेंट्री स्कूल है जो कि स्लम के अंदर है, और उस स्लम के अंदर उस एक एलिमेंट्री स्कूल में क्लासरूम है. उस क्लासरूम को डिस्क्राइब किया गया है. पोएम हैज 3 पैराग्राफ्स, no sorry 4 paragraphs. So in those 4 paragraphs, the poet has described about the condition of children in those schools, about the classroom in which these children are studying, about the locality where they live, and he tried to end the poem. पोम को खत्म करने की कोशिश की उन्होंने on an optimistic note. एंड उन्होंने एक अर्ज की, एक रिक्वेस्ट की है लोगों से. तो उस चीज को हम इस पोम के अंदर पढ़ेंगे और समझने की कोशिश करेंगे. लेट्स स्टार्ट. यू कैन सी देयर आर सो मेनी हाईलाइटेड पार्ट्स हियर बिकॉज इट इज अ डिफिकल्ट पोम. तो जितने भी डिफिकल्ट वर्ड्स या फ्रेजेस हैं उन्हें हाईलाइट किया है. सो एंड आई ट्राई टू मेक देम अंडरस्टैंड टू यू. सो लेट्स स्टार्ट. Far, far from gusty waves, these children's faces, like rootless weeds, the hair torn round their pallor. The tall girl with her weighed down head, the paper seeming boy with rat's eyes, the stunted, unlucky heir of twisted bones, reciting a father's gnarled disease, his lesson from his desk. At back of the dim class, one unnoted, sweet and young. His eyes live in a dream of squirrel's game. In tree room, other than this. So poet says, far, far from gusty waves, these children's faces. When we try to imagine the face of a child, when we try to imagine the faces of children, जब हम बच्चों के चेहरों को imagine करने की कोशिश करते हैं,
तो वी सी जॉयफुलनेस, हैप्पीनेस, चेयरफुलनेस, एक्साइटेडनेस, ये सारी चीजें हमें इमेजिन होती हैं। बट पोएट सेज ये जो स्लम के बच्चे हैं जो इस स्कूल में पढ़ रहे हैं, इस क्लास में हैं, दे आर फार फ्रॉम गस्टी वेव्स। गस्टी वेव्स जो लहरें होती हैं, एक्साइटेड होती हैं, यहाँ पर गस्टी वेव्स को एज अ मेटाफर यूज किया गया है, एनर्जी से मेटाफराइज किया गया है। तो उस एनर्जी से, उस एक्साइटेड से बहुत दूर इनके चेहरे हैं। द फेसेस आर डल, they have no energy in them, they are almost lifeless because they are living in slum, they don't get much nutrition, they don't get much happiness in their lives, इसलिए they are far from the energy of other children. They are like the rootless weeds. यहाँ पर simile यूज हुई है, rootless weeds, like लगा हुआ है, आप देख सकते हो। रूटलेस वीड्स का मतलब, वीड क्या होता है? वीड जो ग्रास होती है, अनवांटेड ग्रास जो उग आती है, जिसका कोई यूज नहीं होता। तो दीज चिल्ड्रन, दीज पीपल आर लाइक द रूटलेस वीड्स। समाज को, सोसाइटी को, द हायर क्लास, सो कॉल्ड हायर क्लास सोसाइटी, दे डोंट नीड दीज चिल्ड्रन। फॉर देम दीज चिल्ड्रन आर वर्थलेस, दे आर लाइक द रूटलेस वीड्स। एंड रूटलेस का मतलब यहाँ पर क्या हुआ कि एक तो वीड जो यूजलेस है, और ऊपर से उसे रूट से हटा दिया गया है, मतलब कि उसे अनरूट कर दिया गया है, तो दे आर डाइंग। वीड्स जब उनको निकाल दो जड़ से, तो उनके जब जैसे वो एकदम ब्राउनिश हो जाती हैं, डिके करने लगती हैं, डेड होने लगती हैं। दीज चिल्ड्रन आर लाइक दिस, दे आर रूटलेस एंड वीड्स। द हेयर टॉर्न अराउंड देयर पेलर, पेलर मींस यहाँ पर कलरलेस फेसेस, उनके जो बाल हैं वो बिखरे हुए हैं, और उनके कलरलेस फेसेस के चारों तरफ। और उन्हीं में कुछ बच्चों को डिस्क्राइब करते हैं, कुछ स्टूडेंट्स को, कुछ चिल्ड्रन को डिस्क्राइब करते हैं पोएट, और कहते हैं द टॉल गर्ल विद वेट डाउन हेड। देयर इज अ टॉल गर्ल, एक लंबी लड़की है। व्हेन द गर्ल इज टॉल, सो यहाँ पर एक कंट्रास्ट है, द टॉल गर्ल विद हर वेट डाउन हेड। द गर्ल इज टॉल, शी इज टॉल, सो शी शुड स्टैंड टॉलर देन अदर पीपल इन फ्रंट ऑफ हर। जो और लोग हैं उनके सामने उसे लंबा, सामने से ऊंचा खड़ा होना चाहिए, बट बिकॉज शी इज अ गर्ल फ्रॉम स्लम, सो हर हेड इज वेट डाउन, वो हमेशा सर नीचे करके खड़ी रहती है, ताकि उसे ये एहसास ना हो दैट शी इज टॉल, बिकॉज शी इज लिविंग इन स्लम। सो दिस हैज एन, उसके अंदर एक परसेप्शन है, उसके अंदर अपने आप ही एक ऐसी फीलिंग आ चुकी है कि उसका टॉल होना इज अ क्राइम, बिकॉज शी इज, जैसे समाज के हिसाब से, सोसाइटी के हिसाब से, शी लिव्स इन अ स्लम, सो शी शुड नॉट बी टॉल, एज टॉल और टॉलर देन द supposedly high class people. So her head is weighed down. यहाँ पर वेट डाउन हेड का एक सिंपल मीनिंग भी हो सकता है दैट शी इज फीलिंग ड्राउजी, उसे नींद आ रही है, शी इज हंग्री, शी इज सैड। सो ऑल द नेगेटिव थॉट्स, यहाँ पर जो नेगेटिव इमोशंस हैं, हम यहाँ पर वेट डाउन हेड में अप्लाई कर सकते हैं। एंड देन द पोएट डिस्क्राइब्स द पेपर सीमिंग बॉय। द बॉय, देयर इज अ बॉय हु इज एज थिन एज अ पेपर। मेटाफर है, पेपर सीमिंग, पेपर जैसा दिखने वाला एक बच्चा, विद रैट साइज, और उसकी आईज कैसी हैं? रैट की तरह। रैट आपने देखा है, रैट इज ऑलवेज, यू कैन सी दैट अ रैट इज ऑलवेज ट्राइंग टू फाइंड समथिंग, सम फूड, इट्स आईज आर ऑलवेज फाइंड, ट्राइंग टू फाइंड फूड। वैसा ही वो बच्चा भी है, हु इज हंग्री, हु इज नॉट वेल न्यूट्रिश्ड, न्यूट्रिशन सॉरी, वेल नॉट वेल न्यूट्रिशन, पेपर सीमिंग है, and his eyes are like a rat which are always looking for something, probably food. And then the poet talks about the third boy, a stunted unlucky heir of twisted bones, reciting a father's gnarled disease, his lesson from his desk. Stunted, जिसकी ग्रोथ रुक गई है, स्टंटेड है, उसकी ग्रोथ रुकी हुई है, नॉट ग्रोथ प्रॉपर्ली, प्रॉपर ग्रोथ नहीं है उसकी। अनलकी एयर, मतलब कि इस लाइन को समझेंगे, अनलकी एयर ऑफ ट्विस्टेड बोन्स। एयर मतलब होता है सक्सेसर, किसी चीज को कुछ उत्तराधिकार में मिलता है, जैसे राजा का बेटा फिर राजा बनता है, जिसके पास बहुत पैसा होता है तो वो अपने बेटे को पैसे देता है। यहाँ पर इसके फादर को एक ट्विस्टेड बोन डिजीज थी, रिकेट्स थे, उसके बोन्स में बीमारी थी, और जेनेटिकली वो डिजीज अपने फादर से इस बच्चे को भी मिली है। So he is an heir of twisted bones, and he is reciting a father's gnarled disease. और वो रिसाइट, रिसाइट मतलब होता है किसी चीज को रिपीट करना,
बोलना, हम लेसन्स को रिसाइट करते हैं, मगर यहाँ पर रिसाइट इज रीलिविंग हिज फादर्स ट्विस्टेड डिजीज, जो उसके फादर की जो नाल्ड जो ट्विस्टेड डिजीज है वो उसको रीलिव कर रहा है। एंड ही इज ऑल्सो रिसाइटिंग द लेसन, जो टीचर उसे पढ़ा रहे हैं अपनी डेस्क से वो उसको पढ़ भी रहा है, मोस्ट प्रोबेबली ये वही लेसन उस डिजीज के बारे में ही होगा। So he is reciting a father's null disease and he is reciting his lessons from his desk. At back of the dim class, one unnoted, sweet and young, his eyes live in a dream of squirrel's game in tree room other than this. और उसी क्लास के जो बिल्कुल एंड पर एट बैक ऑफ द डिम क्लास, ये ऑलरेडी डिम लाइटेड क्लास है, डिम लाइटेड क्लास है, उसके लास्ट सीट पर एक अननोटिस्ड सा वन यहाँ पर एक बच्चे के लिए बोला गया कि वन बॉय इज अननोटिस्ड हु स्वीट एंड यंग, छोटा है अभी, ही इज स्वीट एंड हिज आईज लिव इन अ ड्रीम, उसकी आंखों में अभी सपना है, यानी कि वो इस समय अपनी क्लास में ध्यान नहीं दे रहा है, उसका दिमाग कहीं और पर है। कहाँ पर है? हिज माइंड इज एट अ स्क्विरल्स गेम। स्क्विरल्स गेम, वो जो स्क्विरल्स होती हैं जो भाग दौड़ करके करती हैं, उसी तरीके से उसका दिमाग भी वो स्क्विरल्स के गेम के ऊपर है, उनको देख रहा है या उनको इमेजिन कर रहा है इन अ ट्री रूम। ट्री रूम क्या होता है? वी नो व्हाट अ ट्री रूम, स्मॉल रूम्स हम ट्री के ऊपर, जो आपने देखा होगा मूवीज में या बुक्स में, वो पेड़ों के ऊपर रूम बनाते हैं, छोटे छोटे ट्री हाउसेस बनाते हैं। तो उन ट्री हाउसेस में वो स्क्विरल्स के साथ गेम खेल रहा है, ऐसा वो इमेजिन कर रहा है। Here the poet says his eyes live in a dream of squirrel's game in a tree room other than this, other than this यानी ये जो क्लासरूम है, this classroom is here compared with the tree room, the tree house. ट्री रूम जैसा होता है वैसा ये रूम भी स्मॉल है, डार्क है, जैसा ट्री रूम एक छोटा सा डार्क रूम होता है वैसा ही ये क्लासरूम भी डार्क है। मगर कंट्रास्ट क्या है यहाँ पर? कंट्रास्ट समझिए, एक ट्री के ऊपर ट्री हाउस है विच इज स्मॉल एंड डार्क, येट इट गिव्स अ नोट ऑफ पॉजिटिविटी, एक हैप्पीनेस, एक चेयरफुलनेस देता है। बट इफ अ क्लासरूम इज if a classroom is small and dark and dim, so it's a negative thing ना, classroom should not be dim, तो वो नेगेटिविटी का यहाँ पर फील दे रहा है। दोनों को ट्री रूम से कंपेयर किया गया, क्लासरूम को भी एंड द ट्री रूम एज इट इज, लेकिन जो एक्चुअल ट्री रूम है, ट्री हाउस है, दैट इज full of positivity, gives a positive note. But if the classroom is like a tree room, it's on the negative context. ठीक है, सो दिस इज द फर्स्ट पैराग्राफ। एक बार जल्दी जल्दी से जो डिफिकल्ट वर्ड्स है वो देखते हैं इस पैराग्राफ में। गस्टी वेव्स आया था, विच मींस द ब्रीजी विंड्स। पहले और मैंने आपको बताया पेल एंड डल फेस, स्टंटेड जो पूरी तरह से ग्रो नहीं किया हो, मैलन्यूट्रिशन हो, नाल्ड रफ नॉटेड ट्विस्टेड, वीड अनवांटेड प्लांट्स, पेपर सीमिंग बॉय बहुत पतला जैसे कोई बच्चा हो पेपर जैसा, एंड एयर मैंने आपको बताया था सक्सेसर। इस पैराग्राफ में वैसे तो बहुत सारे फिगर्स ऑफ स्पीच है, मैं आपको काफी बता चुका हूँ, जो इंपॉर्टेंट है उनको देखते हैं थोड़ा। सिमिली है यूज की गई है यहाँ पर, चिल्ड्रन कंपेयर किया गया है रूटलेस वीड से, और मेटाफर यूज हुआ है जहां पर बच्चे को, बॉय को पेपर थिन यानी कि पेपर जैसा थिन बताया गया है। एंड अनदर मेटाफर जहां पर रैट्स आईज यानी कि आईज, रैट लाइक आईज को डिफाइन किया गया है। और रेपिटेशन है फार का, आप अगर आप स्टार्टिंग में देखते हो फार फार दो बार यूज हुआ है, दैट इज द रेपिटेशन, रिपीट किया गया है उस वर्ड को, ताकि ये बताया जाए कि काफी दूर, यानी कि कोई आसपास भी नहीं है उस एनर्जी के, बिल्कुल डल है, बिल्कुल लैक ऑफ एनर्जी है उनके फेसेस में। ठीक, लेट्स कम टू द सेकंड पैराग्राफ। ऑन साव क्रीम बॉल्स डोनेशंस, शेक्सपियर्स हेड cloudless at dawn, civilized dome riding all cities, belled flowery Tyrolese valley, open-handed map awarding the world its world, and yet for these children these windows not just map their world, where all their futures painted with fog, a narrow street sealed in with a lead sky, far far up from rivers, capes and stars of words. अब क्लासरूम को डिफाइन कर रहे हैं, हमने देखा पहले पैराग्राफ में, फर्स्ट पैराग्राफ में पोएट ने स्टूडेंट्स को, चिल्ड्रन को डिफाइन किया स्लम स्कूल क्लासरूम के। अब सेकंड पैराग्राफ में वो क्लासरूम को डिफाइन कर रहे हैं।
poet says that on sour cream walls. sour cream आपको पता है, sour cream जब मिल्क होता है, जब वो रॉट हो जाता है, बहुत समय तक बाहर रह जाता है, तो जैसे येलोइश सा हो जाता है, डर्टी येलो, वो जो वॉल है क्लासरूम की, दैट इज डर्टी येलो, डर्टी गंदे हैं और येलोइश हैं। वहां पर डोनेशन है, कुछ लोगों ने डोनेशन किया है। डोनेशन किस चीजों का किया है? शेक्सपियर हेड, यानी कि शेक्सपियर की एक फोटो है वहां पर, क्लाउडलेस एट डॉन, एक सीनरी है सुबह की जहां पर बिल्कुल बादल नहीं है और सुबह हो रही है, सूरज उग रहा है, उसकी फोटो है। सिविलाइज्ड डोम, सिविलाइज्ड डोम यहाँ पर क्या है, दो चीजों के लिए यूज हो सकता है। एक तो सन, वो जो ब्राइट सन निकल रहा है और राइडिंग ऑल सिटी सब जगह, वो जो सन है उसकी जो शाइन है वो सब जगह फैल रही है, उसकी फोटो है। मतलब द सिटीज, बड़े बड़े शहरों की फोटोज हैं, फोटोग्राफ्स हैं, सीनरीज हैं, पिक्चर्स हैं। बेल्ड फ्लावरी टायरलीज वैली, टायरलीज वैली ऑस्ट्रेलिया में वैलीज हैं और वहां पे फ्लावर्स हैं और खूबसूरत सीनरीज हैं वहां पर, सराउंडिंग्स में उनके ऊपर सूरज चमक रहा है, इन तरह की फोटोज हैं। और क्या है वहां पर? एंड दे हैव ओपन हैंडेड मैप, बड़े बड़े मैप्स हैं, वर्ल्ड का एक मैप है बड़ा सा, विच इज अवॉर्डिंग द वर्ल्ड इट्स वर्ल्ड, जो दुनिया को ये दिखा रहा है कि दुनिया कितनी बड़ी है। वर्ल्ड, पहले वाले वर्ल्ड का मतलब यहाँ पर द पीपल ऑफ द वर्ल्ड, और दूसरी वाले वर्ल्ड पर द प्लेसेस। तो उस मैप से दिखा रहा है कि दुनिया कितनी बड़ी है। देयर आर सो मेनी प्लेसेस, they have flowery valleys, Australia, and cloudless cities, everything, वो सारी चीजें उस मैप पर दिख रही हैं। तो अगर आप ध्यान से देखते हो तो ये कंट्रास्ट है, ये सारी चीजें इन बच्चों का जो स्लम है, क्या ये स्लम में रहते हुए इन्हें ये क्लाउडलेस डॉन, ये सिविलाइज्ड डोम, ये बड़ी सिटीज, ये टायरलीज वैली, ये कभी देखने को मिलेंगी? यहाँ पर पोएट ने इन सब चीजों को मेंशन करके एक कंट्रास्ट क्रिएट किया है, और उस कंट्रास्ट को आगे इन्होंने क्लियरली डिफाइन किया है जब वो कहते हैं, एंड येट फॉर दीज चिल्ड्रन दीज विंडोज नॉट दिस मैप देयर वर्ल्ड। मैंने कहा लेकिन फिर भी ये जो बच्चे हैं, जो ये स्लम में रहते हैं, इनके लिए ये मैप इनकी दुनिया नहीं है। ये जो खिड़की दिख रही है क्लासरूम के बाहर, जहां से इनको इनका स्लम दिखाई देता है, इनके घर दिखाई देते हैं, वो गंदगी दिखाई देती है और वो जो क्लमजीनेस दिखाई देता है जहां वो रहते हैं, वो उनकी दुनिया है। वो दुनिया जहां उनका पूरा फ्यूचर फॉग में पेंटेड है, पूरा फ्यूचर फॉग में पेंटेड है, यानी कि द इनका जो पूरा फ्यूचर है, आगे ये चाहे कुछ भी कर लें, अल्टीमेटली यानी वो फॉग यानी डस्कीनेस, वो जो सोरोनेस है, स्मोकी है, क्योंकि इंडस्ट्रीज के आप देखते हुए कभी अक्सर किसी किसी इंडस्ट्रीज के आसपास ही ये स्लम्स होते हैं, तो वो इंडस्ट्रीज का जो धुआं आ रहा है और वो सब धुएं की वजह से चारों तरफ फॉग जैसा फैल गया है। एंड ऑल्सो इट्स अ मेटाफोर फॉर शेडी एंड अनक्लियर, इनका जो फ्यूचर है वो अनक्लियर है, शेडी है, कोई नहीं जानता कि आगे इनकी लाइफ में क्या होगा। नेगेटिव, फॉग ऑल्सो क्रिएट्स अ नेगेटिव इम्पैक्ट, नेगेटिव थॉट क्रिएट कर रहा है। तो इनका फ्यूचर, वो वर्ल्ड जो है इनकी, वो मैप में नहीं दिखता। इनकी दुनिया जो फॉगी है, जो स्मोकी है, जो अनक्लियर है, शेडी है, वो इस क्लासरूम की खिड़की के बाहर दिखाई देती है। उनका वो स्लम, उनके घर, उनकी कॉलोनी, उनका एरिया। अ नैरो स्ट्रीट उन्हें दिखता है, उसके बाहर क्या, एक पतली सी गली है विच इज सील्ड इन, जो चारों तरफ से बंद है, एंड इट इज सील्ड इन विद लेड स्काई। ऊपर आसमान भी इनको ब्लू नहीं दिखता, लेड दिखता है। लेड यानी ग्रेइश है, बिकॉज ऑफ द स्मोक, इंडस्ट्री का जो स्मोक है उसकी वजह से इन्होंने कभी, इनका आसमान भी जो ऊपर दिखाई देता है दैट इज वेरी डार्क, लेड की तरह ग्रेइश है। और वो बिल्कुल भी उन रिवर्स और केप्स और स्टार्स ऑफ वर्ड्स, यानी कि वो जो शेक्सपियर के बड़े बड़े वर्ड्स हैं जो उन्होंने उन पोम्स में और उन अपने ड्रामा में और सोनेट्स में लिख के रख दिए हैं, उनसे बहुत दूर है इनकी दुनिया। कोई प्रॉपर एजुकेशन नहीं है इनके पास। यानी कि अगर आप देखते हो तो यहाँ पर वो जो डोनेशंस हैं, उन डोनेशंस में एक बहुत ही पॉजिटिव वाइब्ड वर्ल्ड की बात की गई है, मगर उससे फिर कंट्रास्ट, उससे कंपेयर किया गया है इनके कंट्रास्टिंग बिल्कुल डिफरेंट, इनकी जो एक्चुअल रियलिटी है जहां पर ये जी रहे हैं। फटाफट से इसके डिफिकल्ट वर्ड्स देखते हैं। सावर, अनप्लेजेंट, कलर ऑफ सावर क्रीम विच इज ऑफ वाइट और क्रीमिश। डोनेशंस, थिंग्स विच आर गिवन इन चैरिटी। डॉन, डॉन तो हम सबको पता है, अर्ली मॉर्निंग, अ सनराइज। सिविलाइज्ड डोम, हियर इट मींस राइजिंग सन, जैसे मैंने आपको बताया था वो जो सूरज उगता हुआ।
टायरलीज वैली, ब्यूटीफुल आइस फ्री वैली इन ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया में जो मैं आपको बताया, ऑस्ट्रियन वैलीज जो हैं सील्ड, बंद है, लॉक्ड है। लेड, यहाँ पर डार्क फ्यूचर है किड्स का। वो डार्क स्काई की बात करते हैं। डार्क स्काई का मतलब जैसे मैंने आपको बताया कि वो आसमान जो है वो क्लाउडी है बिकॉज ऑफ द फॉग, एंड स्काई मतलब फ्यूचर भी एक तरीके से फ्यूचर के साथ मेटाफर किया गया है, एंड इट इज डार्क लाइक द लेड। और केप्स क्या होते हैं? जो समुद्र के कोस्टल एरियाज पर जो बड़े बड़े लैंड के पार्ट्स होते हैं, दे आर द केप्स, जो कि हमने लास्ट लाइन में देखा। लिटरेरी डिवाइसेस देखते हैं। मेटाफर यूज हुआ है, वॉल्स को डल बताने के लिए सावर क्रीम बोला गया है। फ्यूचर जो है किड्स का, जो नैरो स्ट्रीट सील्ड विद लेड स्काई वर्ड यूज किया गया है यहाँ पर। ये एक तरीके से एक मेटाफर भी है, उनकी कॉलोनी को तो डिस्क्राइब कर ही रहा है, बट साथ में ये एक मेटाफर है जो ये बता रहा है कि इनकी जो इनका फ्यूचर है वो एकदम पतला है, यानी कि सकरा है, यानी कि उनके पास कोई ब्रॉड फ्यूचर नहीं है। दे डोंट हैव अ फ्यूचर, बिग फ्यूचर की जिसके थ्रू वो बड़ा सोच सकें, जो इन ऑस्ट्रियन वैलीज में या शेक्सपियर ने जो लिख दिया उस तरीके से उस लाइफ को जी सकें। दे हैव अ वेरी नैरो फ्यूचर। और एसोनेंस का यूज किया गया। एसोनेंस क्या होता है? एलिटरेशन जैसा ही होता है। एलिटरेशन में कॉन्सोनेंट रिपीट होते हैं, एसोनेंस में वावल्स रिपीट होते हैं। तो जैसे बेल्ट, फ्लावरी, टैरलीज आप देख सकते हो, ई का रेपिटेशन है। और यहाँ पर यूज हुआ है एल्यूजन। एल्यूजन आप लोगों ने पढ़ा है। एल्यूजन क्या होता है? जब किसी पर्सन या प्लेस जो किसी और स्टोरी से रिलेटेड हो, या कहीं और ऑलरेडी फेमस किसी पर्सन की बात हो या कोई प्लेस हो, उसका रेफरेंस बिना उस चीज को डिस्क्राइब किए किसी पोम या स्टोरी में कर दिया जाता है, तो उसे हम एल्यूजन कहते हैं। जैसे यहाँ पर शेक्सपियर है, टायरलीज है, इन्हें डिफाइन नहीं किया गया हुआ शेक्सपियर या टायरलीज कहाँ पर है, बस ऐसे यूज किया गया है। तो दिस इज द एल्यूजन, जब किसी और चीज का, ऑलरेडी फेमस चीज का मेंशन किसी स्टोरी या पोम में कर दिया जाता है, दैट इज द एल्यूजन। तो यहाँ पर एल्यूजन का यूज किया है। एंड लास्ट में रेपिटेशन हुआ है फार का, फार फार फ्रॉम रिवर्स। चलो, लेट्स कम टू द थर्ड पैराग्राफ। श्योरली शेक्सपियर इज विकेड, द मैप a bad example, with ships and sun and love tempting them to steal, for lives that slyly turn in their cramped holes from fog to endless night. On their slag heap, these children wear skins peeped through by bones, and spectacles of steel with mended glass, like bottle bits on stones. All of their time and space are foggy slum, so blot their maps with slums as big as doom. अब यहाँ पर एक बहुत ही कंट्रोवर्शियल बात कहते हैं पोएट कहते हैं शेक्सपियर इज विकेड। मैंने कहा शेक्सपियर इज अ विलन, दिस मैप इट इज अ बैड एग्जाम्पल। क्योंकि इस मैप में शिप्स हैं, सन है, लव है, ये सब एक बहुत बुरा एग्जाम्पल है। शेक्सपियर इज अ विलन फॉर दीज चिल्ड्रन। क्यों? बिकॉज दीज चिल्ड्रन हैड नेवर मूव्ड आउट ऑफ देयर स्लम्स। वो कभी अपने स्लम से, अपने एरिया से बाहर नहीं गए, एंड दे मे नेवर बी एबल टू मूव आउट, और वो मोस्ट प्रोबेबली शायद कभी बाहर जा भी नहीं पाएंगे। और फिर भी ये शेक्सपियर अपने बड़े बड़े वर्ड्स के थ्रू और ये मैप्स, शिप्स और सन्स और बड़ी सिटीज दिखा करके इन्हें टेम्प्ट कर रहे हैं, जो शायद कभी पूरा नहीं होगा। इस चीज के लिए टेम्प्ट कर रहे हैं कि यहां से निकलने के लिए। स्टील मतलब चुराना। यहाँ पर पैसे चुराने की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं सपने चुराने की। आप सिंपल वर्ड्स में लिख सकते हो टू स्टील द मनी, मगर एक पोएट का माइंडसेट समझने की कोशिश करो। ये पैसे नहीं चुराना चाह रहे, ये चुराना चाह रहे हैं सपने, यानी कि जो सपने कभी पूरे नहीं हो सकते उन्हें देखने की कोशिश कर रहे हैं। टेम्पटिंग देम टू स्टील का यहाँ पर ये मतलब होता है। अगर नहीं समझ में आता है तो एग्जाम में आप सिंपल टेम्पटिंग देम टू स्टील मनी भी लिख सकते हो, योर आंसर वुड नॉट बी रॉन्ग, बट बिकॉज वी आर इन क्लास 12th नाउ, तो हमें थोड़ा सा एक पोएटिक होकर के आंसर को सोचना पड़ेगा। ठीक है, थोड़ा पोएटिक अप्रोच को यूज करना पड़ेगा। आगे देखते हैं। और क्यों टेम्प्ट कर रहे हो इनको? पोएट कहता है डू नॉट टेम्प्ट देम फॉर लाइव्स दैट स्लाइली टर्न इन देयर क्रैम्प्ड होल्स फ्रॉम फॉग टू एंडलेस नाइट। क्यों टेम्प्ट कर रहे हो? किस चीज के लिए टेम्प्ट कर रहे हो? क्योंकि इनकी जिंदगियां जो स्लाइली मतलब धीरे धीरे टर्न हो रही हैं, मूव कर रही हैं
उनके जो क्रैम्प्ड होल्स हैं, क्रैम्प्ड होल्स मतलब वो छोटे छोटे गड्ढे जैसे चूहों के होते हैं, यहाँ पर इनके घरों को क्रैम्प्ड होल्स से कंपेयर किया गया, मेटाफर है यहाँ पर। और उनके घर उनकी जो लाइफ है उन क्रैम्प्ड होल्स में, उन गड्ढों में, उन झुग्गी झोपड़ियों में, वो फॉग, वो जो एक डार्क फ्यूचर है उनका, वो जो फॉग है यानी जहां पर उनको कुछ नहीं दिखता, एक डार्क डल लाइफ है, वो धीरे धीरे उस डार्क डल लाइफ से अपनी डेथ की तरफ, एंडलेस नाइट, डेथ की तरफ मूव कर रही है। दे हैव नो श्योर शॉर्ट फ्यूचर, उनका कोई ब्राइट फ्यूचर नहीं है। डू नॉट टेम्प्ट देम विद दीज फोटोज एंड शेक्सपियर एंड दीज मैप्स, उनको टेम्प्ट मत करो, कोई फायदा नहीं उनको टेम्प्ट करने का, उनकी लाइफ यहीं पर मूव कर रही है, उनकी लाइफ को इतना ही चलना है, इस्लाम की फॉगी लाइफ से अपनी डेथ तक। ऑन द स्लैग हीप, स्लैग हीप मतलब उनका जो स्लैग पता है क्या होता है? वेस्ट डंप, वो इंडस्ट्रीज का जो वेस्ट है, वो डंप है, वो जो इकट्ठा होकर के पहाड़ जैसा बना लेता है, जिसके ऊपर या उसके चारों तरफ उनकी जो स्लम है वो बसी हुई है, वो उस कूड़े के अंदर रहते हैं, उस स्लैग के अंदर, उस वेस्ट, उस डंप के अंदर रहते हैं, उनको वो वर्ल्ड मत दिखाओ। ऑन देयर स्लैग हीप दीज चिल्ड्रन वियर स्किन्स पीप्ड थ्रू बाय बोन्स, ये जो बच्चे हैं इनकी स्किन इतनी पतली है कि उनका जो स्केलेटल स्ट्रक्चर है वो बाहर एकदम साफ साफ पता चल रहा है। दे वेयर स्किन मतलब उन्होंने स्किन को इस तरह पहन रखा है, यहाँ पर एक स्किन को पहनने का मतलब यहाँ पर एक मेटाफर यूज है कि उनके ऊपर जो बॉडी के ऊपर जो स्किन है उनके अंदर से झांक रही है हड्डियां, हड्डियां झांक रही है, मतलब कि उनका जो स्ट्रक्चर है, स्केलेटल स्ट्रक्चर, वो एकदम क्लियरली विजिबल है, दिखाई दे रहा है, इतने पतले हैं। और बिकॉज दे आर मैल न्यूट्रिशन, तो लगभग सभी की आंखें खराब है, छोटे बच्चे हैं, स्कूल जा रहे हैं, तो चश्मे पहन रखे हैं उन्होंने, वो स्पेक्टिकल्स भी कोई बहुत अच्छे ब्रांडेड स्पेक्टिकल्स नहीं है, दे आर मेकशिफ्ट स्पेक्टिकल्स, उन्होंने स्टील से, वेस्टेड स्टील से या चीजों से अपना स्पेक्टिकल बनाया है, और उनके अंदर जो ग्लासेस भी हैं वो इतनी बार टूट चुकी हैं और उन्हें उतनी बार वो चिपका चुके हैं, मेंड कर चुके हैं कि उन ग्लासेस को देख करके ऐसा लगता है कि किसी पत्थर के ऊपर अगर बॉटल को ब्रेक कर दो तो जितने उसके टुकड़े हो जाते हैं, वैसे उनकी स्पेक्टिकल्स के ग्लासेस हैं। तो उन्हें जो दिखाई देता भी है रहा सहा, वो उन टूटी हुई ग्लासेस से दिखाई देता है, और दिखता क्या है उन्हें? वो स्लैग हीप दिखाई देता है। उन्हें क्यों ऐसे बड़े सपने दिखा रहे हो? ऑल ऑफ देयर टाइम एंड स्पेस आर फॉगी स्लम, उनकी सच्चाई, उनका सारा समय, उनके आसपास का सब सराउंडिंग वो फॉगी स्लम ही है। इसलिए उन मैप्स को हटाओ, कवर दो उस मैप्स, उन मैप्स को कवर कर दो, मत दिखाओ वो मैप्स उन्हें, और उन्हें कवर कर दो, और उन्हें ताकि सिर्फ वो स्लम्स ही दिखाई दें विच आर एज बिग एज डूम, डूम, डेथ, एंड। वो इतना बड़ा स्लम है, उनको उनकी लाइफ में वो जो स्लम है, वो उस लाइफ में उनका स्लम उनकी जिंदगी से उनकी डेथ तक जाने वाला है। तो उन्हें मत दिखाओ ये सारे सपने, ये दुनिया, ये शेक्सपियर के वर्सेस और ये खूबसूरत सिटीज। Do not show them those maps of endless world so that they can only know about the slums which are never ending for them. उनको वहीं रहना है, वहीं मर जाना है, तो उन्हें वही दिखाओ, उन्हें वो सपने मत दिखाओ ताकि वो ड्रीम भी देखें और फिर पूरे ना हो तो वो होपलेस हो जाए, दे आर ऑलरेडी होपलेस। चलिए, इट वॉज अ क्वाइट नेगेटिव पैराग्राफ, मगर यहाँ पर इस नेगेटिविटी के थ्रू भी पोर्ट ने एक रियलिटी दिखाने की कोशिश की है कि आप उनको ये फोटोज और ये मैप्स दे करके उनका भला नहीं कर रहे हो। जो डोनेशन दे करके आपको लगता है कि आपने बड़ा काम कर दिया, ये डोनेशन दे के आप उनका कोई भला नहीं कर रहे हो, उनको इससे तकलीफ ही मिल रही है, ऐसे सपने देख रहे हैं वो जो कभी पूरे नहीं हो पाएंगे। चलो, लेट्स कम टू द डिफिकल्ट वर्ड्स। विकेड, इविल, विलन। टेम्पटेड, आप उन्हें परसुएट कर रहे हो, उन्हें लालच दे रहे हो। स्लाइली, ट्रिकली मतलब मूव कर रही हो जो उनकी लाइफ। क्रैम्प्ड, कन्फाइंड, एकदम छोटी। स्लैग, वीक हीप। मेंडेड, रिपेयर्ड, ब्लॉट, टू मार्क विद अ स्पॉट, यानी कि उनको पेंट कर दो उनके मैप्स को। एंड डूम इज डिजास्टर। अच्छा, ओके, यहाँ पर एक बार और समझते हैं। ऑन देयर स्लैग हीप दीज चिल्ड्रन, ऑन देयर स्लैग हीप मतलब कि यहाँ पर स्लैग हीप का एक मीनिंग और निकलता है। स्लैग हीप का एक मीनिंग निकलता है उनकी जो बॉडी है, जो किसी बिल्कुल हीप यानी कि जैसे कूड़ा इकट्ठा कर दो, यानी कि जिनके ऊपर कोई लाइफ नहीं होती,
उस तरीके से वो बिल्कुल लाइफलेस से उनकी बॉडीज हैं, या उनका जो फेस है या उनकी जो बॉडी है वो बिल्कुल लाइफलेस है। और उस पे उन बच्चों ने वो चश्मे पहन रखे हैं और उनकी हड्डियां, स्किन से हड्डियां दिखाई दे रही हैं। तो स्लैग हीप की यहाँ पर दो मीनिंग होती है, एक तो इंडस्ट्रियल वेस्ट जिसके चारों तरफ उनका वो सोसाइटी बसा हुआ है, और यहाँ पर स्लैग हीप को आप उनकी बॉडी या उनके स्ट्रक्चर से भी डिफाइन कर सकते हो। दैट इज अप टू यू, बोथ विल बी करेक्ट। उसके बाद फिर लास्ट पैराग्राफ पर आते हैं। यहाँ पर पोएट ने एक अर्ज की है हमसे, लोगों से। ही सेज दैट अनलेस गवर्नर, इंस्पेक्टर, विजिटर, this map becomes their window, and these windows that shut upon their lives like catacombs break open till they break the town and show the children to green fields and make their world run azure on gold sands and let their tongues run naked into books. The white and green leaves open history theirs whose language is the sun. ये सब जो फर्स्ट पैराग्राफ से थर्ड पैराग्राफ तक पोर्ट ने बताई, उसके बाद वो कहते हैं ये कब तक चलेगा? जब तक कि अथॉरिटीज, गवर्नर्स एंड इंस्पेक्टर्स एंड अस एज विजिटर्स, जो हम उन स्लम्स को देखने जाते हैं और उनकी बेचारगी पर तरस खाते हैं, हम वो तरस खाना छोड़कर हमें कुछ करना पड़ेगा। हम सबसे पोएट ने अर्ज की है, अथॉरिटीज से भी, गवर्नर से, इंस्पेक्टर से, और इवन टू अस सिटीजन्स, कि हमें उनके लिए कुछ करना पड़ेगा। एंड अगर हम उनके लिए कुछ करते हैं, जब तक हम कुछ नहीं करेंगे सिचुएशन विल बी सेम, बट इफ वी डू थिंग समथिंग फॉर देम, इफ वी एक्चुअली डू समथिंग फॉर देम, देन दिस मैप विल बिकम देयर विंडो। तब ये जो मैप है ये उनकी खिड़की बनेगा, यानी कि इनको पूरी दुनिया सामने दिखाई देगी। और ये जो विंडोज हैं, जो इनके घरों की खिड़कियां हैं, जिन्होंने, या जो ये जिन्होंने इनको बंद कर रखा है उन कैटाकोम्स में, कैटाकोम्स मतलब होता है ग्रेव, जो दफन कर रखा है इनकी जिंदगियों को, जिससे वो कभी बाहर नहीं निकल पाते। कैटाकोम्स यहाँ पर मेटाफर यूज किया है स्लम के लिए, जो अपने स्लम्स के अंदर वो दफन हो चुके हैं, जिससे वो बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, ग्रेव्स के अंदर, उन सिमेट्रीज के अंदर वो दफन हो चुके हैं। उनसे बाहर निकलना होगा, उनको ब्रेक करना होगा हमें उनके लिए, और उन्हें उनको मदद करनी, उनकी मदद करनी होगी हमें, टू ब्रेक ओपन देम। उनकी हेल्प करो कि जब तक वो इस पूरे टाउन को, यानी कि इस स्लम को ब्रेक करके बाहर नहीं निकल जाते। ओके, सॉरी, माय इंटरनेट गॉट डिस्कनेक्टेड, इसलिए वीडियो कैंसिल हो गई वाली। सो वी विल डू द लास्ट पैराग्राफ, एक बार फिर से करेंगे। लास्ट पैराग्राफ स्टार्ट करते हैं फिर से, उसके पहले तक की पुरानी वाली वीडियो में आ चुकी है, तो लास्ट वाले पैराग्राफ को एक बार फिर से कंटिन्यू करते हैं। So, unless governor, inspector, visitor, this map becomes their window, and these windows that shut upon their lives like catacombs break open till they break the town and show the children to green fields and make their world run azure on gold sands and let their tongues run naked into books. The white and green leaves open history theirs whose language is the sun. So as I was saying, कि इस लास्ट पैराग्राफ में पोएट एक अर्ज करते हैं, पोएट एक रिक्वेस्ट करते हैं किनसे? गवर्नर से, इंस्पेक्टर से, जो अथॉरिटीज हैं, और विजिटर्स यानी हमसे, हम एज ए सिटीजन हमसे भी, कि हम सबको कुछ करना होगा। जब तक हमने नहीं किया, जो ऊपर उन्होंने बताया, रियलिटी इन बच्चों की यही रहेगी। बट इफ वी हेल्प देम, देन दिस मैप, जो उनके स्कूल में, वो उनकी क्लास में वो जो मैप बना हुआ है, दैट मैप विल बिकम देयर विंडो, यानी कि वो पूरी दुनिया को सच में देख पाएंगे। और जो उनके घरों की खिड़कियां हैं, जो उनके स्लम की विंडोज हैं, जिन्होंने उनकी लाइफ को कैटाकोम्स जैसा कि आपको बताया, ग्रेव्स की तरह, उनको कब्र की तरह उनको दफन कर रखा है उनकी जिंदगियों को, उस कैटाकोम्स से बाहर निकलेंगे कैसे? वी हैव टू ब्रेक ओपन देम एंड वी हैव टू हेल्प देम टिल दे ब्रेक द टाउन। उनको, उस शहर को, यानी कि यहाँ पर टाउन मतलब उस स्लम को, उस पूरे स्लम को ब्रेक करके वहां से बाहर निकलना है। एंड शो द चिल्ड्रेन, और उन बच्चों को हमें दिखाना है, शो द चिल्ड्रेन टू ग्रीन फील्ड्स, वो जो दुनिया है, जो ग्रीन फील्ड्स हैं, जो उन इंडस्ट्रियल और लेड स्काई से बाहर है, इंडस्ट्री के वेस्ट से बाहर है वो जो दुनिया, वो ग्रीन फील्ड्स उनको दिखानी है। एंड मेक देयर वर्ल्ड रन अज्योर ऑन गोल्ड सैंड्स, और उनकी दुनिया को, मेक देयर वर्ल्ड, उनको वो जो अज्योर यानी ब्राइट ब्लू स्काई जो आसमान में दिख रहा है, वो जो ग्रीन फील्ड्स हैं, वो जो गोल्ड सैंड्स हैं,
जो इन्होंने कभी नहीं देखे, जो नेचर की ब्यूटी है, उस ब्यूटी से उन्हें हमें इंट्रोड्यूस कराना होगा, उनके स्लम को ब्रेक करके, उनकी हेल्प करके. एंड लेट देयर टंग्स रन नेकेड इनटू द बुक्स. इफ वी show them these green fields, the blue skies and the sands, they will have a hunger for knowledge then. तब उन्हें एक चीजों को जानने की, समझने की उनके दिमाग में एक सोच पैदा होगी. एंड लेट देयर टंग्स रन नेकेड इनटू बुक्स, यानी कि फिर वो अपनी मर्जी से उन किताबों को जिसमें दुनिया के बारे में लिखा हुआ है, यानी जो एजुकेशन उन्हें चाहिए, आगे जो पढ़ना चाहते हैं या जो वो कुछ करना चाहते हैं, वो उन्हें करने की उनके अंदर इच्छा पैदा होगी जब वो अपनी रोज रोज की जिंदगी के सर्वाइवल से बाहर निकल पाएंगे. लेट देयर टंग्स रन नेकेड इनटू बुक्स, यहाँ पर इसका मतलब कि उनकी जीभ को, यानी कि उनको वो किताबें पढ़ने दो, उन्हें दुनिया को जानने दो, उन्हें नॉलेज अटेन करने दो. द व्हाइट एंड ग्रीन लीव्स, ये जो व्हाइट एंड ग्रीन लीव्स हैं, व्हाइट लीव्स यानी यहाँ पर बुक्स, ग्रीन लीव्स यानी जो वैलीज हैं, जो ग्रीन फील्ड्स हैं. यहाँ पर व्हाइट एंड ग्रीन लीव्स बहुत खूबसूरती से यूज किया गया. व्हाइट लीव्स मतलब द लीव्स ऑफ द बुक्स, एंड द ग्रीन लीव्स यानी कि नेचर, यानी कि वो नेचर को, बाहर की दुनिया को और किताबों को पढ़ेंगे, देखेंगे. देन ओपन हिस्ट्री देयर्स whose language is the sun, यानी कि they will be able to paint a bright future for themselves. जो सन, जिस तरह सन ब्राइटली चमकता है, उस तरीके से वो अपनी फ्यूचर को ब्राइट बनाएंगे. दे ओपन हिस्ट्री देयर्स, यानी कि वो आगे जाकर के वो महान इंसान बनेंगे जो कि जिनका फ्यूचर सन की तरह ब्राइट था. ठीक है, चलिए लास्ट में एक बार इस पैराग्राफ को भी, इसके डिफिकल्ट वर्ड्स देखते हैं. ज्यादा नहीं थे इसके अंदर, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट वर्ड्स नहीं थे. कैटाकोम्स, टोम, टूम यानी कि सिमेट्री, कब्र, ग्रेव मैंने जैसे आपको बताया. एंड अज्योर, अज्योर मतलब डीप ब्लू स्काई, मैंने वहां पर आपको डिफाइन कर दिया था. अगर आप फिगर्स ऑफ स्पीच, यानी कि फिगर्स ऑफ स्पीच की बात करते हैं, लिटरेरी डिवाइसेस की, तो मेटाफर यूज किया गया है बुक्स और नेचर्स को, व्हाइट और ग्रीन लीव, जैसे मैंने आपको बताया था. कैटाकोम उनकी लाइफ को, उनके स्लम को एज अ ग्रेव यहाँ पर एक मेटाफर यूज किया गया. एंड देयर आर सेवरल अदर एलिट्रेशंस और छोटे मोटे और भी फिगर्स ऑफ स्पीच यहाँ पर आपको मिलेंगे, बट जो मैंने अभी बताए हैं वो दे आर द इम्पोर्टेंट वंस. ओके, सो आई होप समझ आया होगा चैप्टर. इट वाज अ बिट कॉम्प्लेक्स चैप्टर, कॉम्प्लेक्स, थोड़े से वर्ड्स इसके डिफिकल्ट थे, थोड़ा समझना मुश्किल था, मगर मैंने मोस्ट ऑफ द वर्ड समझा दिए. वीडियोस को आप बार बार देखोगे तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा. डिफिकल्ट वर्ड्स भी हैं, उनको आप पढ़ सकते हो वीडियो पॉज करके. तो ट्राई टू लर्न देम, ट्राई टू अंडरस्टैंड द पोएम वंस अगेन. इस पोएम को आपको 2-3 बार कम से कम पढ़ना पड़ेगा, और बार बार आप वीडियो को देखोगे तो ज्यादा अच्छे से क्लियरली समझ में आएगा. इसमें क्वेश्चन कैसे आते हैं? क्वेश्चन अगर आप देखते हो तो पहले तो हम देख रहे हैं फिगर्स ऑफ स्पीच इतने सारे हैं, लिटरेरी डिवाइसेस हैं, मीनिंग्स हैं, तो वो क्वेश्चन इसमें से आएंगे. उसके अलावा आपको आ सकता है डिफाइन करने को द सिचुएशन ऑफ चिल्ड्रन इन द स्लम. आपको आ सकता है कंट्रास्ट डिफाइन करने को, जो कंट्रास्ट क्रिएट किया गया है. आपको डिफाइन करने को आ सकता है द थर्ड पैराग्राफ सॉरी, जो शेक्सपियर को विकेट बोला है, और मैप को क्या कहते हैं, बैड एग्जाम्पल बोला हुआ है मैप को. वो चीजों को डिफाइन करने के लिए आपको आ सकता है, तो उन्हें अच्छे से थोड़ा एक बार समझ लीजिएगा. एंड दैट्स इट, आई थिंक इतना ही है. और बार बार पढ़ोगे तो, जितनी बार पढ़ोगे उतना अच्छे से समझ में आएगा, जितनी बार आप वीडियो देखोगे उतना क्लियरली समझ में आएगा. थैंक यू.